Hello everyone, I am Dr. Ranjana Agarwal. Today we are going to read Wildlife Resources. Wildlife means entire flora and fauna which are growing in their natural habitat and they are not domestic. इसमें animals, plants, microorganisms सब आ जाते हैं which are not domesticated by human. Wildlife का important component है biodiversity and India has unique biodiversity both with respect to animals and with respect to plants, vegetation. But due to rapid industrialization, increased pollution, increase in population, and due to population increase, the demand for food increases, hunting increases, and this results in overexploitation and extinction of well-known species of animals as well as plants from this country. So Earth has immense biodiversity and all living organisms, they together form a complex web. That means they one needs the other and they maintain the ecological balance. And according to Wildlife Protection Act 1972, wildlife includes animals, bees, butterflies, crustaceans, fishes, moth, aquatic and land vegetation which forms part of any habitat. India has richest country in respect to biological diversity and we have 8% total species of entire world. We have 90,000 species of fauna and 74,000 species of flora. 15,000 flowering plants, 2,000 species of birds. But out of all these, 10% flora and 20% of mammals are on threatened list. So we have very largest biodiversity, or we are the richest source of biological diversity or wildlife. And wildlife is an essential part of our ecology, food chain, food web, biogeochemical cycles, energy flow through various tropical levels. Preserve vitality and health of the environment and provide stability to various ecosystems. All these are the benefits of wildlife. And for all these, we require to protect them, to preserve them, and to prevent them from extinction. Categorize the species as normal species, which are present in the current era and whose population level is considered to be normal and for survival and they are present in abundance. So that species are called as normal species. But those species जिनकी population कम हो गई है और वो अब दिखाई देना बंद हो गए हैं और they are in the danger of extinction, उनके ऊपर नेगेटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिससे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, जैसे ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मकाका, long tailed macaca and Sengai etc. And these all are endangered species. Another species which are called as vulnerable species, वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर लेवल से भी ज़्यादा कम हो गई है और जो कि धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएंगे धीरे धीरे, और नेगेटिव फैक्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली अगर ऑपरेट होते रहे तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएंगे. दे आर वल्नरेबल स्पीशीज, यानी वो पॉपुलेशन, वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन
अभी एंडेंजर्ड लेवल तक नहीं पहुंची है, जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन्स एक्सेट्रा. Then rare species with small population may move into the endangered or vulnerable category अगर नेगेटिव फैक्टर्स काम करते रहे तो, जिसकी पॉपुलेशन कम हो गई है और एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में वो मूव कर सकते हैं, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एक्सेट्रा. देन एंडेमिक स्पीशीज, जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है और जो कि नेचुरल या जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा आइसोलेट हो गई है और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होती है, वो स्पीशीज कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज, जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग एक्सेट्रा. देन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वो स्पीशीज जो कि अब प्रेजेंट नहीं है, अगर उन्हें सर्च किया जाए, उनको जानते हो, उन्हें ढूंढा जाए तो भी वो ना मिले तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, अब वो उस एरिया में प्रेजेंट नहीं है. वो उस लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाए, रीजन से एक्सटिंक्ट हो जाए, कंट्री से एक्सटिंक्ट हो जाए, कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो जाए या एंटायर अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाए, तो दैट गायब हो जाए, तो ऐसे स्पीशीज क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज. जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ऑल दीज आर कम्स अंडर एक्सटिंक्ट स्पीशीज. अब इनका कोई भी एनिमल नहीं मिलता. अभी लॉकडाउन के दौरान हमने सुना कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज थे जो अब तक एक्सटिंक्ट हो गई थी और अचानक से एक या दो एनिमल्स के दिखाई देने लगे, कहीं से निकल के आ गए. सो ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल नहीं मिलती है, दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज. और जो धीरे धीरे जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, दे आर वल्नरेबल स्पीशीज. जो बहुत ज्यादा कम हो गई है, एक्सटिंक्ट की डेंजर में है कि अब तो एक दो कभी कभार ही दिख जाते हैं, देन दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि एंडेंजर्ड में चली जा रही है या वल्नरेबल में जा रही है, वो रेयर स्पीशीज. तो इस तरह दे आर कैटेगराइज्ड इनटू वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर और डिपेंडिंग ऑन देयर presence in that particular area or in that particular country or in the continent, etc. There are variety of factors which are responsible for depletion of wildlife. These include habitat alteration, जिसमें अगर जिस हैबिटेट में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसको बदल दिया जाए तो उनकी उनका डिप्लीशन होने लगता है. कैसे कि अगर जैसे जो कवर है या जो शेल्टर है जिसके अंदर वो रहते हैं, अगर वो डिप्लीट हो जाए, वो हट जाए, फॉरेस्ट वेजिटेशन है, टॉल ग्रासेस हैं, रिवर्स के मार्जिन्स पर अनइवन ग्रुप है जो कि उनको वाइल्ड एनिमल्स को कवर या शेल्टर प्रोवाइड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल टॉल ग्रासेस हैं काजीरंगा सेंचुरी में, वो राइनो को कवर कर लेती थी. अगर ये कवर हट जाए तो फूड और वाटर प्लेंटी में प्रेजेंट होने के बाद भी वो एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है. दूसरा, अगर जो एरिया है जिसमें वो मूव करते हैं वो एरिया अगर रिड्यूस कर दिया जाए, और वो रिड्यूस क्यों हो? क्योंकि कल्टिवेबल लैंड्स बढ़ जाएं, अर्बनाइजेशन बढ़ जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने लगते, तो उससे क्या होगा कि जो फ्रीडम है वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट के लिए वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो एनिमल्स जो हैं वो अपना नंबर मेंटेन नहीं कर पाएंगे. उस रिलेटिवली वो एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो जाएंगे जिससे वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली. तो इस वजह से भी वाइल्ड लाइफ को थ्रेट हो सकता है. वाइल्ड प्लांट्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, टिम्बर, चारकोल, फायरवुड, और इस सब के लिए मैन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कट करते रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाइल्ड प्लांट्स को, तो जो कि कुछ एनिमल्स का मेन फूड होता है, तो उसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. अर्बनाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, रोड्स बन जाए, रेलवेज बन जाएं, और उसकी वजह से जो एरिया है एनिमल्स के मूवमेंट का एरिया वो लिमिटेड हो जाए और एनिमल्स को डिस्टरबेंस भी हो क्योंकि वहाँ से व्हीकल पास होंगे और मैन एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो नॉइज होगी, उसकी वजह से हैबिटेट लॉस होगा और उसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट नहीं होने से
the plant and animal will be reduced. Then indiscriminate hunting, हंटिंग मनी के लिए हो, फूड के लिए हो, प्लेजर के लिए हो, सो बहुत तरीके से हंटिंग होती है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है एनिमल्स की, फूड, हॉर्न, फर, टस्क, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको मार दिया जाता है और जिससे धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। जो नेटिव स्पीशीज हैं वो डिसअपियर हो रही हैं और उनको बचाने की बजाय हम नई एग्जॉटिक स्पीशीज को एंटर करते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से भी जो हमारी नेचुरल स्पीशीज है वो धीरे धीरे ग्रो नहीं कर पाती, खत्म हो जाती है। दूसरा, पॉल्यूशन। इट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉल्यूशन। रिवर, स्ट्रीम्स, एयर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन, इनका मैग्नीट्यूड और टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। दैट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ और उसकी वजह से धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। और जब वो एक्सपोज होते हैं, पॉल्यूटेड वाटर पी लेते हैं तो उनको कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, डिजीजेज हो जाती हैं, उसकी वजह से उनको खतरा हो जाता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है, डैमेज हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल है, रेडिएशंस हैं, ऑयल स्पिल्स इन द सी, जनरेशन ऑफ एफ्लुएंट वेस्ट और कई तरह की टॉक्सिसिटी की वजह से या अनसाइंटिफिक डिस्पोजल की वजह से वाइल्ड लाइफ को थ्रेट हो रहा है और उसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो डिप्लीट हो रही है, वाइल्ड लाइफ हमारी डिप्लीशन की कगार पे आती जा रही है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटिंक्ट हो स्पीशीज उनसे बचाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स इनिशिएट किए गए। इंडिया ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम 1930 से इस्टेब्लिश किया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ताकि एनिमल बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, उन्हें एक्सटिंक्ट होने से रोका जा सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो एक एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का, एनिमल्स को, प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने का एक अटेम्प्ट है जो कि गवर्नमेंट ने, इंडिया ने लिया। कंजर्वेशन को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एज वेल एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट एंड इकोसिस्टम जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स नेचुरली रहते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्कैर्ड ग्रोव्स, ये सारे जो हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन ये इसमें आते हैं जूस, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, ये सब एक्सीटू कंजर्वेशन है। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। ये जीन बैंक जो है ये भी एक्सीटू कंजर्वेशन का तरीका है जिसमें आप सैंपल जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज का आप सैंपल स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर और और जिससे उसकी वायबिलिटी बनी रहे, कई डिकेड्स तक वायबल रहे और जब ज़रूरत हो तो उस जर्म प्लाज्म को यूज़ करके नया एनिमल डेवलप किया जा सके। There are necessity of wildlife conservation, balance of nature, economic value, scientific value, sports and enjoyment, cultural value, religious attachment. बैलेंस ऑफ नेचर, जैसा कि आप सभी जानते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, फूड चेन को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर हम कार्निवोर्स को डिस्ट्रक्ट कर दें तो क्या होगा, हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट वेजिटेशन को इफेक्ट करेंगे। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड। देन इकोनॉमिक वैल्यू, ऑल हैव एनिमल प्रोडक्ट जो हैं जैसे कि हॉर्न्स है, आइवरी है, फर है, हाइड्स है, ऑल आर गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंट्री। इनसे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है और अगर हम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। साइंटिफिक वैल्यू भी है, मेडिसिन,
नए सर्जिकल मेथड्स ये टेस्ट किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। कॉमन रीसस मंकी जो है वो एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज किया जाता है। इकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्टडीज इनके ऊपर की जाती है। सो अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम जो नेचुरलिस्ट जो हैं या एनिमल्स की स्टडी अगर हम करना चाहें तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स और एंजॉयमेंट में भी वाइल्ड लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बर्ड वॉचिंग हमारे लिए एक एंजॉयमेंट जैसे है। और दूसरा बहुत ही पॉपुलर एक स्पोर्ट है कह लीजिए फॉरेनर्स के लिए, सेंचुरीज और पार्क को विजिट करना। ये सब स्पोर्ट्स और एंजॉयमेंट में आता है। कल्चरल वैल्यूज हमारी अर्ली जो इंडस सिविलाइजेशन थी वहाँ पर एनिमल सिंबल्स को यूज करते थे वो लोग। और हमारी जैसे हमारी ग्रेट एपिक रामायण है उसमें देयर इज इफ हनुमान, बाली, सुग्रीव ये सब नहीं होता तो ये, और फिर कई सारे मेन कैरेक्टर हैं पंचतंत्र के। तो इस तरह ये वाइल्ड लाइफ जो है वो कल्चरल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और रिलीजियस अटैचमेंट भी है इससे। काऊ है, हनुमान है, लॉर्ड शिवा है, स्नेक के ऊपर स्लीप कर रहे हैं, राइड ऑन गरुड़ पे राइड कर रहे हैं। हर एक जो गॉड है उसका अपना एक एनिमल है जो कि सवारी के लिए यूज होता है। तो इस तरह हम रिलीजियस अटैचमेंट भी इनसे रखते हैं। तो इसलिए भी हमें नेसेसिटी है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? थ्रू प्रोटेक्शन बाय लॉ। अगर ये नेसेसरीली हम कुछ लॉ को पास करें और उन्हें एनफोर्स करें, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें, जो लॉ ब्रेकर्स हैं उनके ऊपर फाइन लगाएं, उनके ऊपर केसेस डेवलप करें। तो इस तरह लीगल प्रोटेक्शन अगर एनिमल्स को दिया जाए तो वो हम इससे उनको कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, हम सेंचुरीज और रेफ्यूजेस क्रिएट करें। हम सेंचुरीज एक नेचुरल हैबिटेट डेवलप करें, एक एरिया डेवलप करें जहाँ पर कि वो प्रोटेक्टेड हो और वहाँ वहाँ उन एनिमल पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले, उन्हें हंटिंग ना हो, उन्हें सुरक्षा मिले। तो इस तरह हम उनको कंजर्व कर सकते हैं बाय एस्टेब्लिशिंग सेंचुरीज। उनकी जो ओरिजिनल हैबिटेट्स हैं उनको हम रिस्टोर कर लें। फॉरेस्ट एरिया है तो उसको फॉरेस्ट एरिया ही रहने दें, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को कम कर दें। तो ओरिजिनल हैबिटेट्स को हम रिस्टोर करके भी हम उन्हें बचा सकते हैं। दूसरा, बेटर लिविंग कंडीशन दे दें, प्रोविजन ऑफ कवर हो, प्रोविजन ऑफ फूड, वाटर सब अवेलेबल हो, शेल्टर प्रॉपर हो उनके लिए। तो इस तरह भी हम उनको बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करके भी हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। और कॉमन मैन को हम एजुकेट कर दें कि जो गवर्नमेंट और बहुत सारी एजेंसीज हैं वो कंटिन्यूसली एजुकेट करें रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, कैसे वो हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज हैं उनकी। और इन सब चीज़ों के लिए उन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कंजर्व करना इज नेसेसरी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करें, जैसे लेजिस्लेशन है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट। और इसमें बहुत सारे जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसको कि लास्ट अमेंडमेंट किया गया 2006 में, वाइल्ड लाइफ नेशनल एक्शन प्लान है, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, इंडियन फिशरीज एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। सो अलग अलग सालों में धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आता गया वैसे वैसे धीरे धीरे कंजर्वेशन के लिए लीगल एस्पेक्ट, लीगल लॉज डेवलप किए गए। नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है, लैंड है जिसमें कि जिसका एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है और जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं नेचुरल सराउंडिंग। 2017 तक हमारे यहाँ 103 नेशनल पार्क थे जिनका टोटल एरिया है 40,500 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे पहला जो नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया गया दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। और यहाँ पर टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड थे। काजीरंगा नेशनल पार्क,
हजारीबाग नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व, गिर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, और दीज आर सम ऑफ द कॉमन नेशनल पार्क जो कि अवेलेबल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरिया है लैंड का, वेटलैंड का या सी रिजर्व का जो कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। 2017 अप्रैल तक 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी जिनका टोटल एरिया 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर था। इस सेंचुरी वो एरिया है जहाँ पर हंटिंग टोटली प्रोहिबिटेड है। प्राइवेट ओनरशिप राइट्स जो हैं वो सेंचुरीज को ग्रांट किए गए हैं और वहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रांटेड हैं, और ये भी इंश्योर किया गया है कि वहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे फीडिंग, नेस्टिंग, ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ वो उनको इंटरफेयर ना हो। और इसके लिए केवला देव घना बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, डिकीगम सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, नागार्जुन सागर सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, पेरियार सेंचुरी केरला में है, वाल्मीकि नागर टाइगर रिजर्व इज इन बिहार। सो इस तरह एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी सेंचुरीज हैं। दीज आर सम कॉमन सेंचुरीज। बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं और इन प्रोजेक्ट्स में है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इंडियन राइनो विजन 2020 फॉर सेव राइनो, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। सो दीज आर सम कॉमन प्रोजेक्ट्स और इस तरह ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए हैं ताकि इन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। कुछ सोसाइटीज़ भी इंडिया में काम करती है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हालांकि इफ़ेक्टिव इनिशिएटिव ले रही है कंट्री में, लेकिन फिर भी कुछ और सोसाइटीज़ हैं जो कि आगे आ रही हैं और गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं इस सब कामों में। और ये सोसाइटीज़ जो हैं कुछ गवर्नमेंट ने डेवलप की हैं, कुछ प्राइवेट स्पीशीज़ हैं, कॉर्बेट फाउंडेशन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ SOS, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ fund WWF and Center for Wildlife Studies. So these are some of the common wildlife conservation societies, and ये इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज भी कहते हैं जो कि कंट्री को हेल्प करती हैं फॉर मेंटेनिंग रिच वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।